Students, in the previous lecture we discussed about properties of acids. Now we are going to discuss the properties of bases. Let us have a quick review of the definition of base given by the three concepts. Arrhenius concept says that base is a chemical substance which releases OH minus ion in its aqueous solution. Bronsted concept says that base is a substance which accepts H plus ion. And Lewis concept says that base is that chemical substance which has at least one unshared pair of electron as well as a complete octet. So these were the three definitions of base given by the three concepts of acids and bases. Now we are going to discuss the chemical properties of bases. The first chemical property of base that we will be discussing is a reaction of base with metal. As we have seen in the case of acids, acids are reacting with metals to produce salt and hydrogen gas. Same reaction is shown by bases. So we see that some metals such as zinc and aluminium, they react with a strong base such as alkali to produce salt and release hydrogen gas. Now the difference here is this reaction is not shown by all the metals. This reaction is shown by zinc and aluminium only. So you have to remember this point. Base do not react with all the metals, whereas acid do. So we are taking some reactions as an example. Zinc metal is reacting with a strong base, that is NaOH. This is called an alkali, to produce sodium zincate and release hydrogen gas. So this is an example. Another example is aluminium metal is reacting with another alkali, or you can say a strong base, to produce sodium aluminate and release hydrogen gas. So only these two metals are able to react with the strong bases. Rest of the metals, they do not show this reaction. So you have to remember this point. This reaction is not shown by all the metals, and only zinc and aluminium are able to show this reaction. Now some of you might be thinking, what is so special about zinc and aluminium that they are able to react with base whereas other metals are not able to react with base? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है इन दोनों मेटल्स की नेचर से. ये जो दोनों मेटल्स होते हैं ये और इनके कंपाउंड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं. एम्फोटेरिक केमिकल किसको बोलते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी एक टाइम पर एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर देता है और वहीं दूसरे टाइम पर किसी दूसरे रिएक्शन में वही बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर देता है. तो जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं वाटर. वाटर एक एम्फोटेरिक केमिकल होता है. क्यों? क्योंकि ये किसी टाइम पर ये एसिड भी बन जाता है. जैसे कि अगर अमोनिया के अंदर वाटर जो है वो डाल दिया जाए तो अमोनिया के अंदर वाटर जो है वो बन जाता है एसिड. लेकिन अगर HCl के साथ वाटर को रिएक्ट करवाया जाए तो HCl के साथ ये बन जाता है बेस. तो जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों मेटलिक फॉर्म में, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि इनके ऑक्साइड्स, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है. तो जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये एसिडिक रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है. यहाँ पर ये जो जिंक मेटल है ये एक बेस नहीं बल्कि ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट, प्लस यहाँ पर वाटर की जगह क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस. इस बात का भी ध्यान रख लेना. ऐसे ही एल्यूमिनियम मेटल जो है वो इस रिएक्शन के अंदर एक एसिड का काम कर रहा है. एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है. ठीक है. तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा. जिंक और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन में आ जाते हैं. इनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं. एम्फोटेरिक बिहेवियर की वजह से ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई. लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं, बाकी मेटल्स बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं. वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाते हैं, वो ड्यूअल कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे. तो क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं और हम रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहे हैं? बेस के साथ. तो बेस ज़्यादातर बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते. एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये दोनों मेटल्स क्या होते हैं? ये डिपेंड करता है आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो. अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये दोनों मेटल बेस बन जाते हैं, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये दोनों मेटल एसिड बन जाते हैं. इस वजह से इन दोनों मेटल्स ने ये रिएक्शन जो है वो शो की, लेकिन बाकी मेटल्स जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं कर रहे. क्लियर. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड. तो ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि
हम दोनों केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, इस वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है, वही कॉमन रिएक्शन है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉमन फॉर बोथ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों ही ये प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बेस का यूज़ करके। रिएक्शन हमने पहले भी लिखी थी, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। एसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रही है, किस सेंस में हम न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है एसिड और बेस ने जो आयंस प्रोड्यूस किए थे उनकी। एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है, बेस OH- आयन प्रोड्यूस करता है। जब हम एसिड को बेस के अंदर मिक्स करते हैं तो इन H+ आयन को क्या करता है, OH- आयन न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है, H+ के साथ OH- रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर। एग्जाम्पल हम कर ही चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहे हैं H2SO4 इसके साथ, HNO3 NaOH के साथ। अब ये वाली रिएक्शंस कुछ देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, इसके साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है, इसके साथ भी एसिड रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है, इसके साथ HCl रिएक्ट कर रहा है, और ये सारी रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो सेम वही रिएक्शन है, इस प्रॉपर्टी में नया कुछ नहीं है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये शो करती है रिएक्शन ऑफ अ बेस विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब हमने किसी बेस को किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें रिएक्शन देखने को मिली कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब ये रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसी। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बन रहा था, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो बेस कॉमन हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो कैसा हो गया, एसिड के जैसा। तो यहीं से हमने जो है वो ये पॉइंट लिख लिया कि नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो बेस जब भी किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और वाटर। और तुम्हें कैसा लगेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन तुम्हें होती हुई लगेगी। क्लियर। तो आपने एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया कोई भी, उसकी सब बेस के साथ रिएक्शन कराई तो आपको सॉल्ट और वाटर जो थे वो प्रोड्यूस होते हुए मिल रहे थे। इसी वजह से आपने ये प्रेडिक्शन किया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, लाइम वाटर बोलते हैं इसको, बेस होता है ये। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये क्या होता है, ये वाइट कलर का PPT बनाता है, सॉल्ट होता है वाइट कलर का, इनसॉल्यूबल होता है, मार्बल भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, ये हम पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है, तो ये मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर इसकी वजह से। तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसके अंदर से हमने CO2 को पास कराया तो MgCO3 बन गया और वाटर बन गया। यहाँ पर भी हमें सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या लाइम वाटर में से पास कराया तो CaSO3 बन गया, कैल्शियम सल्फाइड और वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो क्या हो गई, ये रिएक्शंस हो गई रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विद अ बेस। तो सभी रिएक्शंस जो है वो सिमिलर हैं। तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस दोनों को डिस्कस कर लिया। ये सभी प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस देखें कि एसिड्स में और बेसिस में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमने की थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो जितने भी मेटल्स थे, नोबल मेटल्स को छोड़ के, नोबल मेटल कौन कौन से, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम भी आता है, तो ये सभी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अभी हमने देखा बेसिस के केस में क्या हो जाता है, सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में देखा, एसिड जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CO2 गैस रिलीज कर देता है। लेकिन बेस ये रिएक्शन शो ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, अभी समझाया था। ये बेस जो है ये बेसिक सॉल्ट होते हैं, ये तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह रिएक्शन दिखाते हैं। ऐसे ही बेस जो है वो मेटल की जगह क्या आ जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस।